Good afternoon to all. And the second wave of COVID is too brutal, which is detrimental to everyone's happiness and mental health. Today's session on hope, faith, and happiness has been arranged and our President, Mr. Anil Sabru, which will surely help and motivate us. Before handing over the session to Mr. Sabru, I will just like to give a brief introduction of our session speaker, who is Professor Mr. Ramesh Arora and has been a consultant and trainer in the fields of excellence in life and work, happiness, leadership, and motivation for the past 3 decades, and has lectured in international organizations. Professor Arora has received the prestigious Paul Appleby Award for a significant contribution to the discipline and profession of public administration. He did his MPA and PhD from the University of Kansas, Lawrence, USA, as a Fulbright scholar. Sabru sir, over to you now for the welcome address. Welcome Professor Arora and the participants. Yeah, thank you, Anita. Good afternoon, Professor Ramesh Arora ji, colleagues, friends from industry and their team and family. Professor Arora, I welcome you on behalf of EMA family. I hope you all are safe and taking good care of yourself and your families. The country is seeing a crisis of unprecedented nature and effects. All have experienced and witnessed this unstoppable chain of events. And this prompts me to share a few thoughts with you. We are going to overcome this difficult time as always by helping each other responsibly and solidarily. Secondly, there is no doubt that this crisis is going to bring about irreversible changes in the way we think and we work. But seeing the present situation prevailing outside, many of us have started feeling alone to feeling hopeless, and this led us think about this important session of today. Anita have already introduced Mr. Professor Ramesh Arora ji. He is the chairman of Management Development Academy, Jaipur, and is a consultant and trainer in the field of excellence in life and work. I heard him way back around 22 years ago, and he is with the same energy and passion. He has lectured in various organizations like Rotary International Alliance. He has addressed an enlightened audience in the USA, Germany, Thailand, Malaysia, Bhutan, Pakistan, Sri Lanka, South Africa, Bangladesh, etc. He has authored and edited more than 50 books. Some of work includes like Time Management for Happiness and Success, Art of Leadership, Gift of Happiness, Khushi Ki Kala, Vijay Vyaktitva, and Fine Art of Human Behavior, some of them. I am sure all will be benefited today by his golden advice and experience. Thanks, Professor Arora, for your presence and look forward for your session. Over to you. Honorable Anil Sabru ji, and I'm really grateful to you that you have invited me. Just a minute, mobile ko. ऐसा रखिए आता. I'm really grateful to you for inviting me, and today the environment in which the whole lecture had to be prepared. सवेरे से मैं सोच रहा था कि कैसी कैसी टिप्स होनी चाहिए निराशा का सामना करने के लिए, मन में जो कालिमा आती है उसको शुद्ध करने के लिए. फिर मैंने सोचा कि निराशा की बात ही क्यों करें, आशा की बात क्यों ना करें, विश्वास की बात क्यों ना करें, आस्था की बात क्यों ना करें, आनंद की बात क्यों ना करें. एकदम पिछले 15 मिनट के अंदर अंदर मैंने ये लेक्चर बदल दिया. मेरा दूसरा लेक्चर जो तैयार आपके लिए हुआ था वो काफी ज्यादा, देखिए इतने सारे कार्ड हैं, सब ये आपके लिए तैयार किए थे, मैं इनको छोड़ रहा हूँ. मैंने कहा कि हर कोई वेबसाइट बात करना कि कोरोना का सेकंड फेज है, थर्ड फेज आएगा, वेव आएगी, क्या होगा, तो सारे वीडियो भरे पड़े हैं कि हमें ध्यान रखना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, स्टीम लेनी चाहिए, वॉकिंग करनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, बाबा रामदेव की दवाइयाँ लेनी चाहिए और अपना पूरा प्रोटेक्शन रखना चाहिए, जो आप सब कर रहे हैं. और इतना ज़्यादा
बोmbardment है इंफॉर्मेशन का कोविड पर कि हम लोग परेशान हो गए हैं। अखबार के हर अखबार के ऊपर एक मुहर लगनी चाहिए, बैड मॉर्निंग, पढ़ते ही बैड मॉर्निंग हो जाती है। और इसलिए अब तो ज्यादातर साइकोलॉजिस्ट कह रहे हैं कि या तो अखबार पढ़ो ही मत, या एक पढ़ो, सिर्फ हेडिंग देख लो और बाकी न्यूज व्यूज मत देखो, अगर नहीं तो आप कभी न्यूज में आ जाएंगे। मतलब यह है कि हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। ऑल द टाइम थिंकिंग अबाउट द इलनेसेस और क्या स्थिति है सर कि हिंदुस्तान की पॉपुलेशन 140 करोड़ है और अनफॉर्चुनेटली मैं ये भी जो गए हैं दुनिया में से लोग 2,40,000, ये भी बड़ा दर्द होता है। एक जिंदगी भी चली जाए तो मन में पीड़ा होती है, परंतु इस स्थिति से मुकाबला किया जा रहा है, किया जाएगा, 100% होगा। मत दीजिए दोष किसी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को, जी जान से लगे हुए हैं सब लोग, ये डॉक्टर, ये वॉरियर्स, ये प्राइम मिनिस्टर, ये चीफ मिनिस्टर, ये ऑफिसर्स, ये पुलिसमैन, क्या सेवा कर रहे हैं ये। यदि आपको मालूम पड़े, यू विल बी वेरी हैप्पी टू बी एन इंडियन। कुछ गंदे गंदे लोग हैं 0.5% जो बेईमानियां करते हैं, दे शुड बी पनिश्ड बाय अस, दैट इज डिफरेंट। परंतु स्थिति इतनी भयानक नहीं है जैसी अखबारों ने बना दी है। हमारे विश्वास को मत तोड़ो भाई, ये अखबार वालों, ये न्यूज वालों। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों नहीं हम थोड़ा सा एक डिफरेंट व्यू ले लें, क्यों, हाउ टू बी हैप्पी इन लाइफ, हाउ टू बी ऑप्टिमिस्टिक इन लाइफ, हाउ टू बी होपफुल इन लाइफ, हाउ टू हैव फेथ इन गॉड। मैं आपको सच कहता हूं, एटीट्यूड डिटरमिन्स एवरीथिंग। परिस्थिति नहीं, मनस्थिति है जो मानव को निश्चित रूप से तैयार करती है बाधाओं का सामना करने के लिए। मनस्थिति को बदलना जरूरी है। आइए मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं आपको जो सच्ची है। इंग्लैंड में एक सर्कस आई और उस सर्कस में एक बहुत अच्छे जोकर थे, उनका नाम जॉन द जोकर था। लोग सर्कस को देखने के लिए जाते और बार बार देखने के लिए जाते। जॉन द जोकर के कारण वो सर्कस 6 महीने चल रही थी। साइकेट्रिस्ट ये कहते, मनोचिकित्सक, किसी भी अपने पेशेंट को कि तुम परेशान हो, जाओ जॉन द जोकर को देख के आओ। और लोग देखने जाते और मन बड़ी उत्फुल्लित होकर आते हैं, दे वर वेरी होपफुल एंड जॉयफुल, उनकी बीमारी कम हो जाती। खुद साइकेट्रिस्ट भी देखने के लिए जाते। एक दिन सबसे बड़े साइकेट्रिस्ट के पास एक बंदा आया और मन में उदासी थी उसके चेहरे पर, परेशान था वो। उसने कहा, सर मैं बहुत परेशान हूं, मुझे लगता है मुझे में कई बीमारियां हैं और मैं पता नहीं कभी लुढ़क ना जाऊं, पर ऐसा लगता है कि एज इफ नॉट आई एम नॉट इन द बेस्ट ऑफ माय मूड्स एंड हेल्थ। उसने कहा, बैठो बैठो, तुम्हारा टेस्ट करते हैं, पैथोलॉजिकल लैब पास ही, चिंता मत करो, सब टेस्ट करा लेंगे आके। पर एक बात कह रहा हूं, एक जॉन द जोकर है सर्कस में, देख के आओ उसको, बदल जाओगे, मूड बदल जाएगा आपका। वो आदमी बोला, सर मैं ही वो जॉन द जोकर हूं। माय गॉड, साइकेट्रिस्ट हतप्रभ रह गया, क्योंकि उसके चेहरे पर तो काफी पेंट होती थी, क्लाउन था वो, तो पहचान नहीं सकते ना आप किसी को नॉर्मल उसमें अपीयरेंस में। उसने कहा, श्योर? उसने मैं कार्ड दिखाया, जॉन द जोकर। उसने कहा कि आई कांट बिलीव इट, तुम इतना सबको हंसाते हो। कहते, हंसाता हूं क्योंकि मेरा पेशा है, पर अंदर से मैं काफी डूबा डूबा सा रहता हूँ। उसका चलो एक काम करें, पास ही पैथोलॉजी का लैब है, चले सारे टेस्ट कराए, हार्ट का कराया, टीएमटी कराया, इको कराया, सीबीसी कराई, यूरिन टेस्ट कराया, सब कुछ कराया, सब कुछ नॉर्मल, एब्सोल्युटली नॉर्मल, नो इलनेस एट ऑल, नो बीपी इवन, नो डायबिटीज, and yet that man was feeling as if he's full of illnesses. उसने कहा, सुनो, तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, तुम जिस दिन चाहोगे कि मैं खुश रहूं, मैं उस दिन से हो जाओगे। जब तुम सोचोगे कि मैं खुश हूं, तुम हो जाओगे। अच्छा एक बार सिर्फ आंखें बंद करो, साइकेट्रिस्ट ने कहा, जोर से बोलो, आई एम हैप्पी। जॉन द जोकर ने कहा, आई एम हैप्पी, और उसके चेहरे पर वो मुस्कुराहट स्माइल। थैंक यू वेरी मच, आई शैल कम अगेन, क्योंकि मेरा टाइम हो रहा है सर्कस का। कितने फीस सर? उसका नो फीस फ्रॉम यू।
यू आर डूइंग ग्रेट सर्विस टू सोसाइटी ऑलरेडी। अब जॉन द जोकर जा रहा था अपनी कार की तरफ हो गया और टकटकी लगाकर साइकेट्रिस्ट जॉन द जोकर को पीछे से देख रहा था। कितना बड़ा आदमी है पर बिना बात के भय से ग्रस्त है। हम सब ऐसे हो जाते हैं। एक बहुत बड़े फिलोसफर हुए हैं, उनका नाम है मतलब आप जानते हैं होमर, अरिस्टोटल, प्लेटो, पर एक स्कॉलर है हॉब्स, पॉलिटिकल साइंस के हैं। उन्होंने कहा मेरी माँ ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, मैं और भाई। माई मदर गेव बर्थ टू ट्विंस, मी एंड फियर। यदि आपको डर लगता है, यदि आपको यह डर लगता है कि आपकी इस कोरोना से मौत ना हो जाए, कोई आपका प्यारा ना मर जाए, कहीं आप बीमार ना हो जाएं, कहीं आपको ऑक्सीजन की कमी ना हो जाए, अस्पताल में बेड ना मिले, कोई परेशानी ना हो, तो डरिए मत। ये सबके साथ हो रहा है, सभी लोग ऐसा कर रहे हैं। ये सामान्य है ऐसा डर, अच्छा है ये डर, इससे तैयारी रहती है, जान पहचान कर लेते हैं। एंड वी आर रेडी टू फेस द प्रॉब्लम एंड वी विल एंड वी शैल विल। Forewarned is forearmed. Forewarned, जिसको पहले पता है कि चुनौती आ रही है, वो पहले से तैयार हो जाता है। हम सब तैयार हैं, किसी की मौत नहीं होगी, किसी का कोई दुर्घटना नहीं होगी। पहली बात तो होगा ही नहीं, होगा तो निकल के आएंगे आराम से। 2,40,00,000 लोगों को हुआ है, उसमें से केवल 2,40,000 की मौत हुई है, 1% की जिनको बीमारी हुई है। और अगर आप 140 करोड़ जनता को लें और 2,40,000 को देखें तो 0.00019 आता है। बुरी बात है ना, फिर भी हम तैयार नहीं थे। पर कौन तैयार था? क्या अमेरिका तैयार था? इसी महीने की बात है, पिछले साल अमेरिका में तूफान मचा हुआ था जुलाई तक में, और वहां एक सर्वे हुआ साइकोलॉजिस्ट का, उन्होंने कराया 40% अमेरिकन, 41% अमेरिकन मानते थे कि या तो हम मर जाएंगे या हमारे लोग मर जाएंगे। इतना भय पैदा हो गया था। आज अमेरिका में लगभग 40% लोगों के टीके लग गए हैं, कई जगह मास्क हटा दिए गए हैं। यूके में अभी हाल ही में एक दिन ऐसा आया, इंग्लैंड में केवल एक दिन में एक आदमी मरा। कंट्रोल्ड है ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, जर्मनी में। धीरे धीरे करके हमारे यहाँ भी कंट्रोल हो ही गया था ना। इसके लिए दोष मत दीजिए किसी को कि मोदी जी ने तैयारी नहीं की, किसी ने तैयारी नहीं की। प्लीज डोंट डू दैट। तैयारी सब कर रहे थे, पर ये एकदम सडनली आ गया। तूफान आता है तो कोई कहकर आता है क्या? वी आर नॉट रेडी समटाइम्स। बट आई टेल यू वन थिंग, आज के अखबार को ही देख लीजिएगा, डेथ रेट हैज गॉन डाउन, रिकवरी रेट हैज गॉन अप, इंसिडेंस हैज गॉन डाउन, ऑक्सीजन धड़ेले से आ रही है, खूब वैक्सीन आ रहे हैं। इतने वैक्सीन आ जाएंगे, 4 तो हिंदुस्तान में नए बनने जा रहे हैं, और फाइजर आ रहा है, मॉडर्ना आ रहा है, स्पुतनिक आ रहा है, कोवैक्सीन बन रहा है, कोविशील्ड है, फास्ट स्पीड पे चल रहे हैं। कोई बात नहीं, सेकेंड वैक्सीन में टाइम है, परंतु थिंग्स आर गुड। नहीं 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 नहीं, वेरी गुड। मन को हराओ मत, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। मन को विजयी रखो, किसी प्रकार से भय, निराशा, अवसाद के भावों को अपने मस्तिष्क पर हावी मत होने दो। We don't have to fight pessimism. We have to encourage and nurture optimism, faith, hope, smile, happiness. भाग जाएगा कोरोना। वो तो अटैक हम पर इसलिए करता है कि हम तैयार हैं, उसके लिए स्वागत कर रहे हैं अननेसेसरली दुखी होकर के। ओशो ने बड़ी सुंदर बात कही थी, मेडिकल कॉलेज में जब पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, तो जो बीमारियों के बारे में पढ़ते हैं ना, उसके लक्षण ये उनमें आ जाते हैं। मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स बीमार हो जाते हैं। अगर वो कैंसर के लक्षण पड़े, उनको लगता है ये गांठ मेरी हो गई है। हार्ट का पढ़ते हैं चल के, माय गॉड ये सब गड़बड़ है यहीं पर। प्लीज फॉर गॉड सेक डोंट फोकस ऑन योर इलनेसेस एंड ऑल दैट। तैयार रहिए। एक 20 पॉइंट्स हैं इसके, हाउ टू फाइट कोरोना, बिफोर एंड आफ्टर, ड्यूरिंग इट, बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर। तैयार रखिएगा, पर ज्यादा टाइम मत दीजिए। प्राणायाम करिए ना, अनुलोम विलोम करिए ना, हंसिए ना, ब्रीदिंग कंट्रोल करिए ना, अच्छी किताबें पढ़िए ना,
भागवत नहीं पढ़ा ना आज तक लोगों ने, पढ़ डालिए, पढ़ डालिए। वाल्मीकि रामायण जो नहीं पढ़ी ज्यादातर लोगों ने, रामचरितमानस एक बार फिर देख लीजिएगा। स्पीकिंग ट्री आती है टाइम्स ऑफ इंडिया की, हिंदू जैन ने जो बनाई थी, वो पढ़कर देखिए, उसके इतने वॉल्यूम हैं हिंदी इंग्लिश के। श्रद्धानंद पढ़िए, विवेकानंद पढ़िए, रामतीर्थ पढ़िए, परमहंस पढ़िए, रमन महर्षि पढ़िए, श्री रविशंकर जी पढ़िए, सतगुरु पढ़िए, साईं बाबा पढ़िए, जिसको चाहो पढ़ो, जहां से प्रेरणा मिलती हो, उनका साथ निभाओ। Have their company rather than the company of these newspapers who just want to earn money for the sake of just publicizing something which really defeats us mentally, emotionally. इतना कुछ आपने नहीं पढ़ा ना अब तक, मैंने भी नहीं पढ़ा। ये समय है पॉजिटिव रहने का। पता है इसका क्या फायदा होने वाला है? ये तो ठीक है, आप घबरा गए, हम अब कोई भी समस्या आएगी ना, we'll be ready to prepare it. We'll be prepared to face it with courage, conviction, force, optimism, dedication, commitment and bravery. एक बार इंसान परेशान होता है तो फिर बाद में आने वाली परेशानियों के लिए अपने आप को मजबूत कर लेता है। एक बार युद्ध में हारा हुआ इंसान भी राणा प्रताप जैसा 3 बार 4 बार अकबर को हरा देता है। पता है आपको, हल्दी घाटी के बाद 4 बार आक्रमण किया अकबर ने, चारों बार हारना पड़ा उसको। ये आती नहीं है चीजें ना, इतिहास हमने नहीं लिखा ना, अबुल फजल ने लिखा ना, आईन अकबरी उन्होंने लिखी ना, अंग्रेजों ने लिखा ना इतिहास। सिर्फ आ जाता है राणा प्रताप, शिवाजी का नाम, ये इनका, अरे भाई ये इनके साथ लड़ने वाले कितने लोग थे? मराठाओं की सेनाएं क्या शानदार थी, राजपूतों की सेनाएं। मजाक थी दुर्गावती को पर देखना, लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई। हिंदुस्तान में बहादुरी का पूरा एक संस्कृति है, पूरी इतिहास है, पर हमें उनके बारे में नहीं पता। अफसोस की बात है, हम कमजोर नहीं हैं। हमने कितने युद्धों में कितने लोगों को हराया। सिकंदर तक को भागना पड़ा, यहां से छोड़ दिया उसने बीच में युद्ध। ये नहीं कि पोरस हार गया, इस पोरस हारा ही नहीं, एक तरह से देखा जाए तो मन के जीते जीत, मन के हारे हार। सो वी आर नॉट ए कॉवर्ड रेस। हिंदू बड़े कमजोर होते हैं, ये होता है, ये प्रोपोगंडा है सारा विदेशियों का। अभी मोदी जी की इतनी बुराई कर दी ना सारे विदेशी अखबारों ने, इंतजार कर रहे थे वो, उनको चिढ़ हो रही थी हिंदुस्तान से कैसे आगे बढ़ रहा है, चीन के मुकाबले में उठ खड़ा हो रहा है। तो अच्छा, कृपया फॉर गॉड्स सेक डोंट लेट योर एनिमीज वेदर इनसाइड और आउटसाइड द कंट्री कॉन्कर योर माइंड। आइए आपको 2000 साल पहले के एक विद्वान के बारे में बताता हूं। उसका नाम एपिक्टेटस था, वो दास था, रोम में था दास। ही वाज अ स्लेव ऑफ नीरो, नीरो का सेव। और जनाब वो नीरो जैसा आदमी भी जनाब बहुत ही प्रसन्न हुआ, उससे बड़ा भारी विद्वान था, उसको आजाद कर दिया। बाद में डोमिशियन जब राजा आया, उसने सारे फिलोसफर्स को रोम से भगा दिया। एपिक्टेटस चला गया ग्रीस में, उसने आश्रम बनाया, वह दुनिया भर के उस वक्त के लोग आकर पढ़ते थे। उनमें से एक व्यक्ति मार्कस ऑरेलियस भी था, जो रोम का सम्राट बना 19 साल के लिए। रिमेंबर वन थिंग, चक्रवर्ती राजगोपालचारी ने कहा एक बार कि दुनिया में 3 ही राज ऋषि हुए, राजा जो ऋषियों की तरह होते हैं। पहले राजा जनक, दूसरे सम्राट अशोक, तीसरे मार्कस ऑरेलियस। अशोक से 300 साल बाद 19 साल तक राज्य करने वाला ये इंसान। कृपया करके इसकी बुक्स पढ़ें। इसकी छोटी सी किताब है, मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ के जरूर पढ़िए। आत्मचिंतन नाम है उस किताब का, 50 रुपए की, ये सस्ता साहित्य मंडल की मिलती है। उस किताब को पढ़ने के बाद लगेगा माय गॉड, जीवन का कितना बड़ा सत्य 65 पन्नों में है, 70 पन्नों में है। उस मार्कस ऑरेलियस ने एपिक्टेटस के साथ ही शिक्षा प्राप्त की थी, रोम का सम्राट बना था। एक है स्टोइक फिलॉसफी। स्टोइक फिलॉसफी में कौन कौन लोग हैं? सेनेका है, पर सबसे बड़ा है एपिक्टेटस, और फिर मार्कस ऑरेलियस। ठीक है, पर एरिस्टोटल और प्लेटो भी हैं और पेरिक्लीस भी है, किंतु मैं समझता हूं कि एपिक्टेटस के बारे में जानना जरूरी है। एक बार उसने अपने शिष्यों से कहा, मेरे प्रिय शिष्यों सुनिए, मेरे प्रिय साथियों सुनिए, एपिक्टेटस ने क्या कहा। जो चीज तुम्हारे बस में नहीं है, उससे तुम्हें कभी आनंद नहीं मिल सकता। You cannot gain happiness from the things that you cannot control.
व्हाट इज इट दैट वी कैन नॉट कंट्रोल? शिष्यों ने पूछा, हम क्या चीज है जो नियंत्रण नहीं कर सकते? एपिक्टेटस ने कहा, फर्स्ट योर बॉडी, तुम्हारा शरीर पर कोई अधिकार नहीं, तुम नहीं नियंत्रित कर सकते। बीमारी होगी, बुढ़ापा आएगा, बीमारियां आएंगी, कई तरह की चीजें आएंगी, रूप बदलेगा। आजकल पुरानी पुरानी एक्ट्रेसेस की तस्वीरें कई बार आती हैं तो बड़ा लगता है, माय गॉड, थिंग्स चेंज, ऑल ऑफ अस चेंज। दूसरा उसने कहा कि एक्सीडेंट तुम नहीं कंट्रोल कर सकते लाइफ में, जैसा ये एक्सीडेंट आया है। एक्सीडेंट होते ही हैं, कितने लोग मरते, 1.5 लाख लोग सड़कों पे मर जाते हैं हिंदुस्तान के हर साल। कैन यू इमेजिन? क्रिसमस के दौरान अमेरिका की सड़कों पर 25,000 लोग मर जाते हैं। तीसरी चीज ये है, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये आप नियंत्रित नहीं कर सकते। नंबर 1, योर बॉडी यू कैन नॉट कंट्रोल। नंबर 2, एक्सीडेंट्स यू कैन नॉट कंट्रोल। नंबर 3, व्हाट अदर्स थिंक ऑफ यू, यू कैन नॉट कंट्रोल। और हम लोग, अरे वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, अरे मेरी इमेज ऐसी हो, मैं कपड़े ऐसे पहनूं, मैं बोलूं ऐसे, मेरा नाम हो गया, मेरी कार आ गई ऐसी, मेरी यूनिवर्सिटीज आ गई। बड़ा मजा आता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, इस कोरोना ने एक चीज सिखाई है, निर्जीव चीजों से प्रेम करना बंद कर दीजिए। जिन चीज में जान ही नहीं है, ये पत्थर के बने हुए मकान, क्या जान है इनमें? ये लोहे की कार में क्या जान है? ये लकड़ी की कुर्सी में क्या जान है? निर्जीव है ये। पेड़ निर्जीव नहीं है, पेड़ सजीव है, पर उसकी कुर्सी जो है बनाते हैं वो निर्जीव हो जाती है। निर्जीव चीजों से मोह छोड़िएगा। मेरे पास वो प्रॉपर्टी है, मेरे पास वो जमीन है, मेरे पास इतनी जमीन है, मेरे पास, माय गॉड, क्या काम आएगी? एवरीबडी इज लीविंग बिहाइंड। और वैसे भी तो कोरोना के कारण लीव कर रहे हैं। कोरोना ना भी होगा तो आज से 20 साल बाद, 25 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल बाद तो छोड़ना ही है। प्यार किस चीज से कर रहे हैं जो हमसे प्यार नहीं करता? जो चीज हमसे प्यार नहीं करती उससे प्यार क्यों करते हो? क्या मतलब? सुनिए मेरा एक एग्जाम्पल। मेरा एक दोस्त बड़ा अमीर है, मेरा खास दोस्त, साथ पढ़े हुए हैं, 55 साल की दोस्ती हमारी, सोचिए। तो एक दिन वो मर्सिडीज कार मिलता है, बोला, रमेश एक देख, नई कार आई है मेरी, मुझे दिखाने के लिए लाया मेरे दफ्तर में, मैनेजमेंट डेवलपमेंट अकेडमी में। 50 लाख की कार है। मैंने कहा तेरी है क्या? कहता मेरी है, ये देख बिल मेरे नाम पर। अच्छा, मैंने कहा सुन, अगर तू अपनी वाइफ से कहे ये मेरी वाइफ है तो ये कहेगी ना हाँ ये मेरे हस्बैंड है। तो अपनी बेटी से कहे ये मेरी बेटी है, वो कहेगी ना हाँ मेरे पापा हैं। तो इस कार से ये कहलवा दे ये तेरी है। क्या मतलब? मैंने कहा जिस जो जो कहती नहीं है मैं तेरी हूं तो उसको अपनी बोल रहा है, तेरी नहीं है। कितनी देर बैठा, कहता कब आई ये कार? कहता 1 महीना हो गया। मैंने कहा तूने कितनी बार चलाई? कहता मैं क्यों चलाऊंगा, ड्राइवर है। मैंने कहा ये ड्राइवर की कार हो गई, मजा तो ड्राइवर को आ रहा है चलाने में, तू तो पीछे गद्दी में बैठता है। चाहे फिएट गाड़ी थी उसके पास पहले एक जमाने में, फिएट में पीछे बैठता था, या मर्सिडीज में बैठता है, गद्दियां वैसी पीछे की होती है खास। तो ये क्या मिला फालतू में अकड़ रहा है? अरे यार, तो जब भी आता हूँ भाषण दे देता है। तो मैंने कहा तेरा काम पैसा कमाना है, मेरा काम शब्द बोलना है। हम बहुत अच्छे दोस्त, हर 2 दिन में एक बार फोन उसका आता है, मैं करता हूँ। बहुत अच्छा इंसान भी है, अमीर होने के बाद भी उसकी जिंदगी बड़ी नैतिकतापूर्ण है। मुझे खुशी है ऐसे लोग भी होते हैं। मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि फिर एपिक्टेटस से पूछा शिष्यों ने कि क्या चीज है जिससे कि आनंद मिलता है? व्हाट इज इट दैट गिव्स हैप्पीनेस? व्हाट इज द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस? एक शब्द में बोला, योर थॉट्स, तुम्हारे विचार। मेरे प्रिय साथियों, आपके विचार से आपकी खुशी और आपकी नाखुशी के कारक है। They are the sources of your happiness. They are the obstacles to your happiness. Feed your mind with positive thoughts. Thoughts of hope, faith, trust, love, sacrifice, giving, forgiving, dedication, commitment, joy, mirth, laughter. Not depression, not gloom, not defeat, not death, not drudgery, अवसाद, निराशा, भय छोड़ दीजिए। और कर भी क्या सकते हैं आप? आपकी सफलता तो मैं एक बात से मानना चाहता हूं, अच्छा ठीक है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है आपके पास, सबके पास बहुत पैसा है आपके पास, आपके बच्चे विदेश पढ़ रहे हैं। मुझे इन दिनों पता है बच्चे विदेश इनके पढ़ रहे हैं, कितनी तकलीफ हो रही है। कैन यू इमेजिन?
कैन यू इमेजिन कि वो आ भी नहीं सकते मदद करने के लिए और कुछ माँ बाप अकेले पड़े हुए हैं। अब महसूस दोनों को हो रहा है ये क्या हो रहा है। मेरा ये निवेदन है कि हम किसी प्रकार से अहंकार ना करें। हमारे पास ये, अरे निर्जीव चीजों से सजीव इंसान को क्या अहंकार करना, फिर क्यों झुकते हो नंगे बिना वस्त्र के जैन समुदाय के संतों के सामने। मर्सिडीज से उतर करके एक इंसान झुकता है एक ऐसे वस्त्रहीन संत के सामने, पत्थर की बनी हुई मूर्तियों के सामने। क्यों झुकता है? क्योंकि सत्य वो है, वहां विचार है, वहां आशा है, आस्था है, वहां पर दिव्यता है। भव्यता नहीं है, दिव्यता है। वर्धमान की भव्यता नहीं है, महावीर की दिव्यता है। अच्छा, हमें विचारों को अच्छा बनाना चाहिए। विचार कहां से बनेंगे? अच्छे दोस्त, धर्म, किताबें, ध्यान से आएंगे। अगली बात करें। मैं निवेदन कर रहा हूं कि एक 3 चीनियों के बारे में बताना। 3 चीनी संत थे। ये पक्की कहानी है, सच्ची कहानी है। इसकी तो तस्वीर भी मिलती है, 3 सेंट्स ऑफ चाइना। They're called laughing saints of China. वो क्या करते थे? तीनों संत जाते थे एक जनाब गांव में, चीन के गांव में, और लोग इकट्ठे हो जाते और हंसना शुरू कर देते। हंसना शुरू करते और बिना कारण के सब लोग हंसने लग जाते। 2 घंटे हंसते, लोगों के पेट में बल पड़ जाता। That's all. वो जाने लगते, चाय वाय पिला देते, लोग खाना पीना। उसके लिए तो नहीं आते थे, वो प्रेम के लिए आते थे। एक दिन में 4-4 गांव, 40 सालों में पूरे चीन को कवर कर लिया। किसी ने पूछा आप ऐसा करते क्यों हैं? कहते हैं सबसे बड़ी सेवा आनंद को देने की है, आनंदित रहने की है, आनंद को देने की है। सबसे बड़े संत की मृत्यु हो गई 45 साल के बाद। सारे गांव वाले इस गांव में मृत्यु हुई। उनका, अरे ये तो दोनों संत रोएंगे। भागे भागे आए दोनों। ये तो रो रहा होगा, दोनों संत रो रहे होंगे, पर ये क्या, दोनों हंस रहे थे। और संत के सामने जो है लाश पड़ी थी। उनका क्या मतलब है, आपका साथी चला गया और आप जनाब हंस रहे हैं। उसे कहा वो यही कह गया है कि जो करते आए हैं वो करते रहना। अच्छा आइए आइए, इसको चिता पर रखवा दें। चिता लगाई गई, गांव वालों ने बनाई। आइए इनको नहला दें। नहीं नहीं नहीं, नहीं मना कर गया वो नहलाने के लिए। अच्छा कपड़े बदल दे। नहीं नहीं नहीं, मना कर गया वो कपड़े बदलने के लिए। चिता में उस सबसे बड़े संत के शरीर को लिटाया गया। और ज्यों ही अग्नि जलाई, पटाखों की आवाज आई। पटाखे क्यों? सुनिए क्यों। अपने दोनों साथियों से कह गया था, जब मैं मर जाऊं मेरे शरीर में पटाखे बांध देना, ऊपर गाउन लगा देना, जिसे मरूं तो मरने पर भी एक दिवाली हो। सेलिब्रेशन ऑफ माय डेथ शुड बी देयर थ्रू फायरवर्क्स। ऐसा ही हुआ। वो संत और करते चले गए, बाद में चले गए, इतिहास में लुप्त हो गए। तो एक कहानी छोड़ गए पीछे, सीख छोड़ गए। दैट हैप्पीनेस इज रिलीजन। प्रसन्नता ही प्रार्थना है, प्रसन्नता ही धर्म है, प्रसन्नता ही सेवा है। To give a smile to a person is the greatest contribution you can make. मैंने देखा बड़े बड़े लोग अपनी स्माइल खो देते हैं। छोटे लोग जिनको आप कहते हैं चपरासी, ड्राइवर, गार्डनर, बाइयां, उनमें हमसे भी ज्यादा कई बार मानवीयता होती है, सिंसियरिटी होती है। उनमें दिखावा नहीं होता। वो अच्छे होते हैं, पर उनकी मुस्कुराहट हम परवाह नहीं करते। वो नमस्ते करें तो हाँ ठीक है, आ गए, नमस्ते बाबूजी, आ गए। What do you mean by आ गए? नमस्ते, कैसी हो, ठीक है बच्चे? कभी पूछा आपने अपने भाइयों के बच्चों के बारे में? डू यू नो द नेम्स और स्कूल्स और क्लासेस? डू यू नो योर ड्राइवर हैज 3 sons and one of them has studied in IIT? I mean, we don't know because they're small people. पैसा नहीं है ना, पैसा कलदार, निर्जीव, सिक, उनसे प्यार ज्यादा है। जो हमारी सेवा करते हैं इस वक्त कोरोना में, उनके बिना जो मुश्किल हो रही है आपकी वाइफ और आपकी बच्चों को और आपको,
उनका महत्व मालूम पड़ रहा है। बताइए कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है? कुछ कलदार क्या खरीद सकते हैं आप इससे? मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि प्लीज गिव स्माइल्स टू पीपल। कितनी बार हंसे आप दिन में? काउंट करिए। हाउ मेनी स्माइल्स हैव यू गिवन टू पीपल एंड हाउ मेनी टाइम्स यू हैव स्माइल्ड? आप कहेंगे स्माइल, इज इट पॉसिबल टू स्माइल विदाउट रीजन? यस, यस। दुनिया के महान विद्वानों में एक नाम है रैल्फ वाल्डो इमर्सन। अमेरिका का विद्वान था, प्रकृति का प्रेमी था। गांधी जी ने उसकी किताबें पढ़कर अपने आप को परिवर्तित भी किया था। प्रकृति का प्रेम जो है, नेचर क्योर जैसे कहते हैं गांधी जी का, उसी से लिया है उन्होंने, इमर्सन से। उसके दोस्त थॉरो से भी लिया है। दोनों दोस्त भी थे, हेनरी डेविड थॉरो और इमर्सन। इमर्सन के बारे में बताना चाहता हूँ। वो रोज सवेरे उठकर भगवान को धन्यवाद कैसे दिया करता था, जो आपको भी देना चाहिए, मुझे भी देना चाहिए। Oh God, thank you very much for giving me one more day. I shall enjoy the company of your sun and the moon and the flowers and the plants and the trees and the ocean, the water and the rain and the birds and animals, butterflies and men and women. I shall enjoy every minute of the day today that you have given to me as a gift. आज तुमने जो मुझे प्रत्येक क्षण दिया है एक उपहार के रूप में, उस प्रत्येक क्षण का मैं आनंद उठाऊंगा। मेरा वचन है तुम्हें। और इमर्सन खाना खाता मुस्कुराते हुए, गांव वो जंगल में घूमता था मुस्कुराते हुए। इमर्सन अखबार पढ़ लेता था मुस्कुराते हुए, बात करता मुस्कुराते हुए, खुश रहता। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गॉड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हम क्या जिंदा वर्षों में रहते हैं? क्या दिनों में रहते हैं? नहीं, केवल श्वास में रहते हैं। एक श्वास है हमारी जीवन की टोटल मियाद। The total duration of my life is only one breath. If it goes, I go. Finished. मैं आज जिंदा हूं, काय का आज भाई? तू अपने सांस को गिन, इसका प्यार कर। तो हर सांस में खुश रहने का तरीका सीख लिया था इमर्सन ने। आज इमर्सन का जन्मदिन था, पर लोगों को पता नहीं था कौन सा जन्मदिन है। तो उसने कुछ पत्रकारों को बुलाया था। एक पत्रकार ने कहा, मिस्टर इमर्सन आपकी आयु क्या है? कहते मेरी आयु 360 साल। कहते क्या कह रहे हैं आप, लगते तो 60 के ही हैं। हाँ, शारीरिक दृष्टि से मैं 60 का हूं, पर मैंने जीवन में इतना आनंद पाया जितना लोग 6 जन्मों में पाते हैं। 60 into 6, 360। मैं आपको सच कहता हूं, डू यू नो हाउ लकी यू आर? डू यू नो यू आर अलाइव? Your daughters, your sons, your wife, your parents, your brothers and sisters and friends and clients and employees are all alive. Maybe one or two have gone, but they have gone to God. It was destined already. The reason became, Corona became reason. It could have been something else. एक सांस भी नहीं कम हो सकता जिंदगी में जो हमारे लिखा गया है। एक सांस भी जो भगवान ने मेरे लिए बनाया है। No corona or no accident can really cripple my breathing and breath. None. ना ज्यादा मिल सकता है। ध्यान रखिए, longevity of my life is determined not by doctors but by God. वो बनाता है मेरी उम्र, जिसको भाग्य बनाते हैं। जन्मपत्री में आती है, कहाँ से बनती है जन्मपत्री? कुछ किया ही नहीं, जन्मपत्री बन गई और बता दिया आपकी उम्र ये है, आप ऐसा करेंगे। काफी कुछ सही हो जाता है, काफी कुछ नहीं होता, डजंट मैटर। बट एस्ट्रोलॉजी का सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि वो आपको आस्तिक बनाती है, मेक्स यू हैव ग्रेट फेथ इन ए पावर बियॉन्ड आवरसेल्व्स। मैं ये मानता कि भविष्यवाणियां पूरी मानते जाइए, बट आई टेल समटाइम पहले से ही मालूम पड़ रहा, काफी चीजें सही हो रही हैं, कैसे हो जाता है? बिकॉज ऑलरेडी डिटरमिन्ड है ये तो, और डेथ भी डिटरमिन्ड है, तो डेथ तो आएगी जब आएगी। मेरे एक दोस्त थे अमेरिका में, मैं जब अमेरिका में पीएचडी कर रहा था, तो मेरे एक दोस्त थे, उनके फादर बहुत जबरदस्त आदमी थे, बहुत पढ़ते लिखते थे। मैंने कहा, सर आई वांट टू आस्क यू, यू आर ऑलरेडी 75, सर आर यू एवर अफ्रेड ऑफ डेथ? आपको भी भय लगता है मौत से? मैंने पूछ ही लिया। कहते वेरी गुड क्वेश्चन। लो, और कोई कहता है अरे व्हाट डेथ, क्यों याद दिलाते हो फालतू चीजों की, टॉक अबाउट लाइफ। वो ये कह सकते हैं, नो तो यू हैव गॉट वेरी गुड क्वेश्चन, बट आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ। रियली सर? हाँ,
कहा, look, as long as I am alive, death cannot come. And when death will come, I won't be there. जब तक मैं जिंदा हूं मृत्यु आ नहीं सकती, जब मृत्यु आएगी मैं होऊंगा ही नहीं, मेरा उसका मिलन ही नहीं होगा, तो मैं डरूं क्यों उससे जिससे मिलन ही नहीं होगा। माय गॉड। इंदु जैन जो है टाइम्स ऑफ इंडिया की चेयरमैन, उनकी परसों डेथ हुई। कल टाइम्स ऑफ इंडिया में फ्रंट पेज पर काफी उसका 8वें पेज पर भी आया। इंदु जैन को मैं इसलिए जानता था कि उन्होंने ये स्पीकिंग ट्री उन्होंने शुरू की थी टाइम्स ऑफ इंडिया में जो आती है, और करीब 40 वॉल्यूम निकाल दिए उन्होंने स्पीकिंग ट्री की, जिनमें से काफी मैंने पढ़ी हैं। छोटे छोटे दो पेज के आर्टिकल, मजा आ जाता है। कहीं सदगुरु का है तो कहीं ओशो का है, कुछ है। तो जनाब इंदु जैन जी ने कहा कि भाई let my death be celebrated here. But I tell you one thing, she was not afraid of death. कहते have led a wonderful life. जिसने अच्छा जीवन जिया है उसकी मृत्यु से भय क्यों? उसकी मृत्यु भी अच्छी होगी। और यदि कोई कष्ट 14 दिन का है किसी को, क्योंकि कोरोना 14 दिन का ही होता है, तो 14 दिन का कष्ट दूर हो जाएगा। और अगर प्रभु चाहता है आजा बिटिया, I'll be happy to go. Let us have those feelings and thoughts. क्यों परेशान होते हो आप लोग और हम लोग? कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये करो वो करो। I mean too much of bombardment of ideas. आइए आपको छोटी सी बात बताऊं, खुश किसी भी परिस्थिति में रहा जा सकता है। आपका चपरासी खुश है, हो सकता है मेरे से ज्यादा खुश हो। आपका ड्राइवर खुश है, हो सकता है आपसे ज्यादा खुश हो। आपकी बाई खुश है, हो सकता है आपकी वाइफ से ज्यादा खुश हो। अरे गरीब है, अरे इसके वजह नहीं पड़ रहे, अरे इसके कपड़े ही नहीं है, एक धोती हमने दे दिए थे, वही पहन के आती थी, अरे इसको सर्दी लग रही थी, एक शॉल मैंने दे दिया, आपने पुराना शॉल दे दिया। मानता तब माता जी अगर आप नया शॉल खरीद के उसको देती तो तब जानता कि आप कुछ कर रही हैं। पुराना शॉल आप यूज नहीं कर रहे, उसको दे दिया, पुरानी साड़ी दे दी। And that is no decent donation. That is not decent donation. या सेक्रीफाइस ही ना हो, वो डोनेशन कैसा, त्याग कैसा? त्याग में खुद का कुछ कष्ट तो हो तब त्याग होता है। खैर, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि तुलसीदास जी की बात बताना चाहता हूं। गोस्वामी तुलसीदास, ओह क्या इंसान था। गरीब घर में पैदा हुआ, मां की मृत्यु हो गई, पिता की भी हो गई, छोड़ दिया पिता ने तो एक तरह से। एक बाई के यहाँ पला, बुढ़िया के यहाँ, उसकी मृत्यु भी हो गई। सबने कहा यह भागा है, इसको पालो ही मत, इसको किसी को पास मत लाए, तो सबने छोड़ दिया। अकेला खाना खाने के लिए तुलसीदास, उसका नाम था राम बोला। कहते हैं जब वो सबसे पहला शब्द उसने राम बोला था, राम, डोंट माइंड। तो राम बोला, भटकता था खाना खाने के लिए। एक मंदिर था हनुमान जी का, बरसात थी, रुक गया, सो गया, उठा। पुजारी ने कहा बेटे क्या है, कहाँ रहते हो? उसने कहा मेरा कोई घर नहीं है। अब तो यहीं रहे, यहाँ बंदर आते हैं, उनके लिए गुड़ और चना सब लोग डाल के आते हैं। माइक म्यूट कर लें, माइक म्यूट, आवाज जोर से, कोई बात नहीं, थैंक यू, डोंट माइंड इट। तो रहने लग गया। सच्ची घटना है, मानस के हंस किताब है अमृतलाल नागर की, पढ़ के देखिएगा। तो जनाब गुड़ खाता, चने खाता, बंदरों के साथ दोस्त बन गया। राम बोला। एक दिन मंदिर में एक दीवार के सहारे खड़ा होकर बैठा हुआ राम बोला गुड़ और चने खा रहा था। उसको इतना मजा आ रहा था जैसे कि कोई बड़े भारी पकवान बन गए, जैसे बच्चे पिज्जा खाते हो या हलवा खाते हो, उसको वो आनंद आ रहा। Therefore, our happiness does not depend on certain conditions that you want to meet. No, depends on my mind. मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं, प्लीज अपने आप को महत्व दो। बचपन में जैसे बचपन में थे, सुनिए थोड़ा सा माइक किसी का खराब है, जैसे बचपन में थे वैसे बन जाओ। डोंट लीव योर चाइल्डहुड,
इसलिए कहते हैं चाइल्ड लाइक, चाइल्डिश नहीं, चाइल्ड लाइक रहो। और चाइल्ड लाइक गांधी था जैसे अभी, अरे हाल मैंने एक वीडियो बनाया, आजकल मैं काफी वीडियो बनाता हूँ और करूँ तो क्या करूँ, तो उसमें मैंने गांधी का हंसता हंसाता महात्मा मैंने वीडियो बनाया है। तो आई मीन चाइल्ड लाइक, आपकी मदर भी चाइल्ड लाइक हो सकती है, फादर भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, आप भी अपने बच्चों के साथ चाइल्ड लाइक हो सकते हो। गंभीर मत बनो ज्यादा बिना बात अपने आप को शो करने के लिए, एज इफ यू आर स्कॉलर, और यू नो आप सीरियस हैं, आपको पसंद नहीं है हंसना हंसाना, ये क्या जिंदगी है? भगवान कृष्ण से सीखो। ओशो की किताब है कृष्ण और हंसता हुआ जीवन। एक तो कहते हैं जरथोस्त्र से जब हंसा तो उसका जन्म हुआ तो रोया नहीं, हंसा हुआ था, हंसता हुआ था। और कृष्ण के लिए कहते हैं जीवन भर वो हंसता रहा। आप रामायण महाभारत में देखिए, द्रौपदी से हंस रहे हैं, अर्जुन से हंस रहे हैं, युधिष्ठिर को का मजाक उड़ा रहे हैं, दुर्योधन का भी उड़ा रहे हैं, कई बार मजाक कर रहे हैं, कभी विदुर से कर रहे हैं, कभी गांधारी से कर रहे हैं, सबसे मजाक कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि कृष्ण के तीनों बच्चे उनके खिलाफ थे? क्या आप जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में कृष्ण का एक भी पुत्र नहीं आया था? क्या आप जानते हैं कि बलराम ने तीनों बच्चों को अपनी तरफ मिला के शराब पिलाना तक सिखा दिया था? क्या आप जानते हैं कि कृष्ण जब तैयारी कर रहे थे युद्ध की, बलराम इन तीनों को साथ लेकर के आया और कहा कि हम तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं, पर कृष्ण ने अपना हौसला नहीं छोड़ा। कृष्ण के सामने दुख दुख ही नहीं था। वो जानते थे ये प्रभु की लीला है, पिछले जन्म के कर्म हैं, मिल रहे हैं। ध्यान रखिएगा, भाग्य कैसे बनता है समझ लें, आपको विश्वास हो जाएगा। जैसे पिछले कर्म है, जिससे आदमी जल्दी मृत्यु हो रही है, आज हो रही है, तकलीफ हो रही है, पिछले जन्म के कर्म है। पर भाग्य सिर्फ पिछले जन्म के कर्मों से नहीं बनता है। 3 प्रकार के कर्मों से भाग्य बनता है। पहला, पिछले जन्म का कर्म, जन्मों का आदर। दूसरा, इस जन्म के कर्म। तीसरा, आपके आसपास के लोगों के कर्म, परिवार के खासकर, जहां आप काम करते हैं इंडस्ट्री में, वहां पर आपके जनरल मैनेजर का कर्म, कुछ भी हो सकता है। परंतु आइए आपको ये बताऊं कि कर्म वर्तमान का कैसे पिछले कर्मों के ऊपर हावी हो सकता है। मान लीजिए एक डॉक्टर ने कह दिया कि सॉरी ये बचेगा नहीं, और उसने हथियार डाल दिए, घर वालों कह दिया इनको आप घर चाहें तो ले जाएं, और बेटा कहते हैं नहीं नहीं नहीं, आप ऐसा मत करिए डॉक्टर साहब, हम घर नहीं ले जाएंगे, ठीक होंगे। सच्ची कहानी सुना रहा हूं। और बाई चांस प्रार्थना की, दवाई दी डॉक्टर को कह करके, और आज वो आदमी 2 साल से जिंदा है, जिसको मर जाना चाहिए था 2 साल पहले। वो क्योंकि वर्तमान कर्म पिछले कर्मों पर हावी हो गया। प्रार्थना के बारे में बताना चाहता हूं, क्योंकि आज मेरा है होप, फेथ एंड हैप्पीनेस। देखिए, प्रार्थना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आहा, प्रार्थना जब करते हैं तो आप ईश्वर से वार्तालाप कर रहे हैं, वो सुनता है पर वो बोलता नहीं है। हर प्रार्थना का जवाब भी आता है, मौन रह के सुनिए तो सही। मंदिर में जाते क्यों हैं? अच्छे विचार क्यों आते हैं? क्योंकि सब लोग वहां अच्छे विचार रखते हैं। प्रार्थना 3 तरह की होती है, और मेरा निवेदन है कि आप तीनों प्रार्थना समझिए क्या होती है। पहली प्रार्थना, हे प्रभु धन्यवाद, जैसा कि इमर्सन कह रहा है धन्यवाद, तूने इतना कुछ मुझे दिया, मैं जीवित हूं, तू रोज सवेरे मुझे उठाता है, मैं जीवित हूं, मेरी पत्नी, मेरे माँ बाप इतने अच्छे थे हैं, मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरा जॉब, मेरी इंडस्ट्री, मेरी इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, मेरा नाम, मेरे मकान, मेरा यश, मैं सेवा कर रहा हूं। प्रभु इतना कुछ दिया तूने मुझे, मैं तो इस लायक ही नहीं था, धन्यवाद। अभी ये कहते कहते मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं ही सोचने लग गया कि मुझे कितना कुछ प्रभु ने दिया है। अभी सामने मेरे पेरेंट्स की तस्वीर है, दे आर नो मोर इन दिस वर्ल्ड। उनका ख्याल आ गया। रेस्ट ऑफ पेरेंट्स, ऑल पेरेंट्स आर वंडरफुल, आपके सबके पेरेंट्स। भगवान को भी कहते हैं कि तुम मातो सहायक स्वामी सखा, तुम ही नाथ हमारे, ओ लॉर्ड अवर फादर इन हेवन। तुम्हें माता पिता, तुम ही माँ, तुम ही पिता। अर्थात भगवान की तुलना सिर्फ माँ बाप से की जा सकती है। हर व्यक्ति जिसके माँ बाप हुए हैं भाग्यशाली है, और हर एक के हुए, और कुछ नहीं चाहिए मुझे।
मेरी अकाउंटेबिलिटी सबसे ज्यादा ईश्वर की ओर है, मेरे माँ बाप की ओर है, बाकी सब कुछ गौण है। बच्चों को खुश करूंगा, मेरी वाइफ को खुश करूंगा, हस्बैंड को खुश करूंगा। अरे ये क्या करना है, सिर्फ प्रभु को खुश करो, माँ बाप की आत्मा को खुश करो। That's all। तो प्रार्थना पहली है थैंक यू सर। दूसरा, गॉड गिव मी गिव मी गिव मी। मांगो ना, क्या चाहते हो। इन दिनों में बिजनेस ठप पे, मांग लो ना, भगवान जल्दी ठीक कर देना। सेविंग्स भी तो उसने दी हैं आपको, बैंक में बैलेंस भी तो आपके हैं, म्यूचुअल फंड भी तो पड़े हैं, ज्वेलरी भी पड़ी है, एफडी भी पड़े हुए हैं, कुछ पैसा घर पर भी पड़ा है, बिजनेस लेना भी आपको लोगों से पैसा, एसेट्स आपके पास हैं, बिल्डिंग आपके पास है, मशीनें आपके पास हैं। कैसे गरीब हो सकते हो इस जिंदगी में। आप इस जीवन में कोशिश भी करोगे तो गरीब नहीं बन सकते। तो इन दिनों में थोड़ा बिजनेस नहीं हुआ तो क्या हुआ, जैसे सरकारी लोग छुट्टी ले लेते हैं बीच बीच में, ये छुट्टी है आपकी, एंजॉय इट। हॉलीडे को होली डे बना लो, होली। गीता प्रेस गोरखपुर को घर में ले आओ, पढ़ो जो नहीं पढ़ सके थे अब तक, बाइबल पढ़ो, कुरान शरीफ पढ़ो, आयतें पढ़ो, कबीर पढ़ो, रहीम पढ़ो, रसखान पढ़ो, मीरा पढ़ो, पढ़ो बुद्ध और महावीर को, कृष्ण और राम को, पढ़ो गोरख, पढ़ो कबीर को, रामकृष्ण परमहंस को, विवेकानंद को, यूजी कृष्णमूर्ति और जे कृष्णमूर्ति को पढ़ो, सुब्रमण्यम भारती को पढ़ो, तुकाराम को, संत ज्ञानेश्वर को, एकनाथ को पढ़ो, जीवनियां पढ़ो, उसको उपयोग करो। अरे क्या हो रहा है, अरे क्या खबर है, अरे डाउन हुआ कि नहीं, आज कितना हो गया, क्या फिगर्स हैं, क्या इज इट रियली डिजायरेबल। आप कर क्या सकते हो, फिगर घटती हैं जो बढ़ती हैं। आप अपनी फिगर को बनाइए और अपने माइंड की फिगर को बनाइए। मैं आपको सच कहता हूं, आप प्रार्थना करेंगे तो ये संकट दूर हो जाएगा धीरे धीरे करके। ईश्वर की शक्ति के सामने क्या डॉक्टर फॉक्टर क्या होते हैं, वो उनके साथ ही चलते हैं। ईश्वर चाहता है तो डॉक्टर सब काम करते हैं। मैं ऐसे ऐसे न्यूरो सर्जन्स को जानता हूं जो पहले मंदिर में जाकर के फिर ऑपरेशन करते हैं। कि ईश्वर ये जो शक्ति देगा, माइंड ब्रेन का ऑपरेशन मजाक होता है क्या। इसलिए परम भगवान परम पिता चरणों में अपने आप को समर्पित करके उससे प्रेरणा पाओ, उससे अनुकंपा पाओ, उसका आशीर्वाद पाओ, उससे शक्ति पाओ। रो उसके सामने, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, कह दो मैंने पायो जी, मैंने राम रतन धन पायो, कह दो। अद्वैत में विश्वास करो या द्वैत में करो, इससे कोई चिंता नहीं है। बट यू मस्ट रिमेंबर देयर इज अ पावर अबव यू, बियॉन्ड यू, greater than you, and try to understand that prayers help। परंतु केवल अपने लिए प्रेयर नहीं करना कि मेरे परिवार को ठीक रखना भगवान, कोरोना ना हो, ये हो, सबकी कृपा लिए चला जाए संकट, जाएगा ही। क्या प्रार्थना करोगे तो जाएगा ही। और अगर आ भी गया ना तो प्रार्थना के बल पर आपका ये संकट जो 100 डिग्री हो सकता है 10 डिग्री रह जाएगा। डॉक्टर भी हैरान रह जाएंगे, अरे आप आए और 3 दिनों में 4 दिनों में आपसे चले गए, आपके लंग तो बिल्कुल ठीक है, 7वें दिन भी कोई आपको जरूरत ही नहीं है स्टेरॉइड्स की। कमाल है, आपकी तो एज 82 है फिर भी कुछ नहीं हुआ आपको। आपको हार्ट की प्रॉब्लम भी है, कोमॉर्बिडिटी भी है, फिर भी आपको कुछ नहीं हुआ। अरे डायबिटीज होती भी आपका शुगर लेवल नहीं बढ़ा, डॉक्टर हैरान होंगे। क्यों? जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान, क्या रोकेगा। परंतु केवल अपने लिए प्रार्थना कभी मत करना, भगवान नाराज हो जाता है। तो स्वार्थीपन तुझे मैंने स्वार्थ सिखाया है क्या, मैं स्वार्थी हूं क्या कि तुझे मेरा बच्चा होकर स्वार्थी बनता है। आइए आपको छोटी सी घटना सुनो जो कि सच्ची घटना है। और मैं भूटान में ट्रेनिंग देने के लिए गया था, इंजीनियर्स को 2 बार गया, हफ्ते भर की ट्रेनिंग थी। तो क्या हुआ, मेरा जो कोऑर्डिनेटर था उस समय जो भूटानीज, उसके बच्चा को वायरल हो गया। उसकी जरूरत तो ये थी कि वो मेरे साथ बैठे, मुझे कोऑर्डिनेट, मुझे मदद करे, पर उसका बच्चा जो है
3 साल का था, 3.5 साल का, उसको वायरल हो गया और बुखार भी 104, 104, 103, 104, 102 ऐसे रहता था। पहला पहला बच्चा था, बड़ा परेशान होता था। तो मैंने कहा व्हाट्स द रीजन? उसने कहा माय चाइल्ड इज अनवेल सर। मैंने कहा देन यू डोंट स्टे हियर, गो होम, आई विल कंट्रोल। मेरी तो पीरियड है ना 4:30 के 4 सारा दिन के, तुम जाओ घर। फिर वो आ जाता था शाम। एक दिन शाम को मैंने कहा मुझे बहुत मठ ले चलो। तो थिम्पू में बहुत मठ हैं अच्छे अच्छे, पारो में भी हैं, आप गए हुए हो। तो मैं थिम्पू में भी गया। फिर आते टाइम मैंने कहा पारो में, एक रास्ता पारो से आएगा ना अगर आप पहुंचेंगे एयरपोर्ट पर। तो पारो मैंने कहा जो जगह का सबसे अच्छा मठ आपको ले चल रहा हूँ। तो पारो के बौद्ध मठ में गया। मेरे प्रिय साथियों, वो इतना सुंदर मठ था, लगता था भगवान बुद्ध स्वयं प्रकट हो जाएंगे, इतना अच्छा था। मैंने प्रार्थना की है भगवान इस बच्चे को, इसके बच्चे को ठीक कर दो। तब तक बच्चा पूरा ठीक नहीं हुआ था। मैंने कहा बच्चे को ठीक कर दो। बाहर आने के मैंने पूछा, मैंने कहा कि मैंने तुम्हारी बेटी के लिए प्रार्थना की, तुमने प्रार्थना कैसे की? मैं जानना चाहता हूं बौद्ध लोग कैसी प्रार्थना करते हैं। उसी का मैंने भगवान बुद्ध से कहा, हे प्रभु मेरे बच्चे को ठीक कर दो, और जितने भी दुनिया में बच्चे बीमार हैं सबको ठीक कर दो। प्लीज क्योर ऑल द चिल्ड्रन हु आर अनवेल इन दिस होल वर्ल्ड। कहता हम केवल अपने लिए प्रार्थना नहीं कर सकते। मैं किसी बुढ़िया को जानता हूं कि भगवान को रोज कहती थी तू मुझे सुख दे, पहले सबको बांट दे, बच जाए तो मुझे दे देना। भगवान से कह रही थी। पता है भगवान से बातें की जा सकती है। मीरा करती थी, राधा करती थी, वही नहीं आप भी कर सकते हैं, आप करते ही हैं, प्रार्थना का उत्तर तो आएगा ही। तो प्रार्थना तीसरी तरह की क्या चीज है, ये तो बड़ी कॉमन है, जान पता है हमें। तीसरी तरह की प्रार्थना बड़ी इंपॉर्टेंट है। जिस ईश्वर में आप विश्वास करते हैं उसको कही, हे प्रभु तो अपने गुण मुझे दे दे। हे राम मुझे मर्यादा पुरुषोत्तम, मुझे मर्यादा दे। हे कृष्ण मुझे कर्मयोगी बना दे। हे शिव मुझे तपस्वी बना दे। हे हनुमान मुझे भक्ति और शक्ति दे। हे गणेश मुझ में वीरता और मेरी वाणी पर नियंत्रण दे। हे सरस्वती मुझे ज्ञान दे। हे महालक्ष्मी मुझे धन दे। अपना गुण मुझे दे दे। सबसे गुण मांगो। ओ जीसस गिव मी फॉरगिवनेस। ओ प्रॉफिट मोहम्मद मेक मी ब्रेव एंड काइंड। ओ ज़ोरास्ट्र मेक मी a wise person. O Moses, make me an humble person. उससे वो गुण मांगो जो उसके पास है। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। किसी भगवान को सुख नहीं मिला, सबको कष्ट मिला। किसको नहीं मिला? राम को नहीं मिला, जिसको सबसे ज्यादा प्यार करते थे उसे बिछड़ना पड़ा। रोते थे मर्यादा पुरुषोत्तम, रोते थे सीता के बिछोह के बाद। एक्चुअली ही क्राइड। कृष्ण के साथ देखा अपने आंखों के सामने सारा यदुवंश नाश हो गया, आंखों के सामने। हर एक की कहानी क्या बताऊं, सबको कष्ट हुआ। अच्छा सुख उनके पास नहीं है। और देखिए ना शिव जी बैठे हुए हैं कैलाश पर्वत पे बिना कपड़ों के, एक छाल है। तो एक आदमी गया शिव जी को, मुझे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। उसने कहा सुन, कष्ट तो मैं अपने आप को दे रहा हूं, और तुझे सुख चाहिए, बता क्या चाहिए। मेरे पास एक गाय है, नंदी बैल है, मेरे पास एक छाल है, मेरे पास एक त्रिशूल है, मेरे पास एक कमंडल है, बता क्या चाहिए। उसने कहा बस ऐसा कर, तू मुझसे वो मांग जो मेरे पास है। धैर्य मांग, तपस्या मांग, मैं वो दे सकता हूँ मेरे को। अतः अपने ईश्वर से उनके गुण मांगिए। इस दुनिया की चीजों को मत मांगिए, ज्यादा अपने आप आएंगी। क्या आप मानते हैं कि आपने सारे गुण आपको जो मिले हैं जिंदगी में, सारी सफलता प्रभु की कृपा नहीं है? इसके अलावा भी कुछ मांग लो। मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि हम अपने जीवन में आनंद को लेकर के आए और अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल किसी के हाथ में ना दें। मतलब कोई भी नाराज हो जाए आपसे, आपकी वाइफ नाराज हो जाए, आपका हस्बैंड नाराज हो जाए, आपके बच्चे नाराज हो जाए, आपका भाई प्रॉपर्टी में ऐसा करे और आप दुखी हो रहे हैं, अरे देखो ये कैसा निकला। अरे दुनिया में कुल 12 ही लोग हैं जिनसे आपका रिश्ता है, टोटल मिला लो, सब मिला लो टोटल 12। कम ही होते हैं आजकल तो, हस्बैंड वाइफ बच्चे, चलो भाई बहन भी ले लो।
माँ बाप जिंदा है तो वो भी ले लो, मैक्सिमम 12 है, मैं तो 10 मानता हूँ वैसे। सिकुड़ जाते हैं हम, इवेंचुअली जाकर के एक बच्चा, 2 बच्चे, हस्बैंड वाइफ, इसी से संसार रह जाता है। मैं अमेरिका में देखता तो बस इतना सा ही संसार है सबका, भूल ही जाते। इंडिया वालों को तो केवल वो प्यार करते हैं, हिंदुस्तान में जिनके बच्चे विदेश में बहुत प्यार करते हैं, बेचारे आ नहीं सकते, उनके बच्चे पढ़ने लग जाते हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन और ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर तो इंडिया में है, ग्रैंड चिल्ड्रन वहाँ हैं, कभी कभार मिल लेते हैं, आपस में ट्रैवल भी नहीं कर सकते। तो मतलब ये है कि पर किसी एक व्यक्ति पर या कुछ व्यक्तियों पर अपनी खुशी का आधार मत बनाओ। बनाना है तो केवल प्रभु बनाना, वो कभी धोखा नहीं देगा। इतना प्यार लो भगवान से कि सबको बांट सको, इतनी खुशियां लो अपने हृदय में प्रभु से कि सबको बांट सको। यू शुड बी ए रिजर्वॉयर ऑफ हैप्पीनेस, फाउंटेन ऑफ हैप्पीनेस। यू शुड बी ए ग्रेट रिवर ऑफ हैप्पीनेस, करंट्स ऑफ हैप्पीनेस। देने वाला ही महान होता है, गिवर ऑफ हैप्पीनेस। फ्रेंड्स, आई एम अबाउट टू फिनिश 3, 4, 5 मिनट्स बिकॉज 1 घंटे का मुझे टाइम मिला था, मैं खत्म करूंगा। पर एक आज आपको राय देना चाहता हूं, अगर आप इस सारे संकट से दूर होना चाहते हैं जो कोरोना का है, और आगे कोई भी संकट आए, और आएंगे ही, खुशियां भी आएंगी, परेशानियां भी आएंगी, किसका कंट्रोल है किसी की बच्ची ससुराल जाए और वहां पर ससुराल में वही प्यार मिले जो आपने अपनी बेटी को दिया है? किसका कंट्रोल है कि उसका बच्चा जो IIT के लिए एग्जाम दे और पास ना हो? तो किसका कंट्रोल है कि किसी का एक्सीडेंट हो जाए बच्चे का और उसका हाथ पैर ना लग जाए? कोई कंट्रोल नहीं है ना। तो संकट तो आएंगे ही, कोई बात नहीं। एक डायरी रखो, उसको डायरी नहीं कहते, रोज के लिखना जरूरी नहीं है, जर्नल कहते हैं, JOURNAL। उसमें मन की बातें उड़े लाकर लिखो, मैं बहुत परेशान हूँ, पर अपने आप को चिट्ठी लिखो। प्रिय अनिल, अनिल साबू जी का नाम नहीं, मेरे से छोटे हैं इसलिए कह रहा हूँ, प्रिय अनिल, तुम नाहक परेशान हो रहे हो, तुमने कितने बड़े बड़े संकटों का सामना पहले किया है, ये भी जाएगा। अरे तुम अपने बारे में सोचते ही क्यों हो? तुम दूसरों के लिए सोचो। कितने लोगों को फोन किया तुमने कल? 3 लोगों को, जबकि 10 लोग ऐसे हैं जो बीमार हैं। तुमने अपना कर्तव्य निभाओ, भूल जाओ अपने आप। देखिए, एक मजेदार बात बता रहा हूं, मोक्ष किसे कहते हैं? आनंद को, स्वतंत्रता को कहते हैं। अपने स्वयं के स्वार्थ से मोक्ष ही सबसे बड़ा मोक्ष है। अपने बारे में सोचने को बंद करना ही सबसे बड़ा मोक्ष है। अपनी स्वयं की आवश्यकताओं को खत्म करना ही सबसे बड़ा मोक्ष है। अपने आनंद के बारे में सोचना ना सोचना ही सबसे बड़ा मोक्ष है। अपने स्वार्थ को तिलांजलि लेकर दूसरों की खुशियों के बारे में अपने आप को समर्पित प्रतिबद्ध करके उस जीवन को तृप्ति प्रदान करना ही मोक्ष है। इस जीवन में जीते हुए मोक्ष का अर्थ यह है, यू बिकम फ्री, independent, autonomous. You don't need anything to make you happy because you are a child of God. अपनी पत्नी और पति से कंपटीशन नहीं करें, बच्चों से नाराज ना हो, भाई बहनों से प्रतियोगिता ना करें। I want to be greater, nobler, stronger, taller than everyone around me. किसी को तो बड़ा बनना ही पड़ेगा ना, मैं क्यों नहीं बनूं? बालक हैं सब, जब आपके पति पत्नी बालक हैं, आपके बच्चे तो बालक हैं ही, आपके भाई बहन भी बालक हो जाते हैं, माँ बाप भी कई बार बालक हो जाते हैं। बालक हैं, बालकों से क्या नाराजगी? बच्चे हैं, बड़े बनो, दिल से बड़े बनो। I tell you one thing, it will be really wonderful if you have a bliss book. डायरी तो जर्नल मैंने कहा, एक होते ब्लिस बुक। ब्लिस बुक, ब्लिस बुक में क्या लिखा? जो अच्छी चीजें लिखिए, जो भी चीजें अच्छी हो रही हैं लिखिए। आपका दोस्त बीमार था, ठीक हो गया, लिखिए। आपको अच्छा बिजनेस मिला, लिखिए। आप बीमारी से ठीक हो गए, लिखिए। आपके पोते का फोन आया इंग्लैंड से, अमेरिका से, लिखिए। आपके मित्र ने कहा यार दोस्त हो तो ऐसा हो तेरे जैसा, लिखिए। ब्लिस बुक। फिर जब भी परेशानी होना, ब्लिस बुक खोल कर देखिए। फिर आप ये कभी नहीं कहेंगे मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, हम जी के क्या करेंगे जब दिल्ली टूट गया। नो, ब्लिस बुक, bliss of God, blessings of God turn into bliss. इतना कुछ मिला है आपको, आप तो ऐसी सी चीजें पढ़ते हो रोज जो दुख देती हैं। कभी ब्लिस बुक खोल के देखो ना, आहा ये बचपन, अरे क्या किलकारियां थी, अरे उसका फर्स्ट बर्थडे, मेरा फर्स्ट, अरे वो टीचर की याद आ गई, कितना बढ़िया था, कैसा सपोर्ट मिला था, मेरा पहला ऑर्डर, पहली मेरी इंडस्ट्री जब शुरू हुआ था। हर एक चीज जो है
ब्लिस बुक, शारीरिक ब्लिस बुक, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक, पारिवारिक, सामाजिक, व्यावसायिक, किसी भी क्षेत्र में जो आनंद मिल रहा है उसको लिखते चले जाइए। दुख के बारे में मत सोचिए ज्यादा, अनुकंपा प्रभु की को गिनिए और उसको धन्यवाद दीजिए। नमस्कार। सो ग्रेट। आई एम ओवर। Thank you so much, sir. It was wonderful session, really very motivational. आपकी इजाजत हो तो एक दो क्वेश्चन ले लें सर, किसी से कुछ है तो। हैप्पी। I want to ask one thing, how we can remain happy constantly? Constantly happy. Okay. See, it is impossible to be happy constantly in the beginning. But if you can become like a merchant also. सुनिए, दुनिया में सबसे बड़ा युद्ध है, the greatest war in the world is एक युद्ध अपने विरुद्ध। अपने नेगेटिव विचार को पॉजिटिव ले आइए। दिमाग में एक विचार, only one thought remains in mind. Two thoughts cannot remain in mind. So whenever negative thought come, no. जैसे for example, बीच में मैं बताऊं ईमानदारी से, अभी हाल ही में मेरी वाइफ ने कोई कटु बात कह दी, ठीक है, तो मैंने कहा कि अच्छा नहीं लगा मुझे, माय वाइफ सेइंग सो, शी इज वेरी काइंड, फिर मैं क्या किया, ओ माय गॉड, सबसे ज्यादा चिंता मेरी इसी को तो रहती है, मेरी बीमारी की सबसे सेवा यही करती थी, मेरे बच्चों की माँ इसने कितना काम किया, मेरे से ज्यादा काम किया है, और जनाब शी इज वेरी काइंड, इसका अधिकार बनता है नाराज होना, क्या हो गया तो, अरे इतनी सी बात पर उसके इतने प्लसेस हैं लाइफ में, एक आध माइनस हो गया तो क्या हुआ, उसके लेजर में बहुत प्लसेस हैं, तो क्या हुआ कि जो ही नेगेटिव थॉट आए उसको कन्वर्ट कर लो पॉजिटिव से। सबॉर्डिनेट की गलती है, डांटने की जगह अरे नहीं कितना अच्छा है, कितना ईमानदार भी रहा है, एक आध गुण हो सकता है इसके व्यवहार में, सो ऑलवेज लुक टू द ब्राइटर साइड ऑफ पीपल, ब्राइटर साइड ऑफ लाइफ, ब्राइटर साइड ऑफ इवेंट्स, ब्राइटर साइड ऑफ इंसिडेंट्स, ब्राइटर साइड ऑफ द रियलिटी। अदरवाइज तो फर्क क्या रहेगा आपका, छोटी छोटी बात में नाराज होंगे, गुस्सा करेंगे। एक तो अहंकार छोड़ दीजिए, एक बात तुलसीदास जी क्या कहते हैं, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, सारे पापों का मूल अभिमान है। भगवान कृष्ण भी कहते हैं काम क्रोध लोभ मोह, काम क्रोध लोभ मोह क्षोभ अहंकार, अर्जुन इन 6 चीजों से बचो, तो मतलब अहंकार आखिर में तो आया, पर मेरे ख्याल टॉप पर है, मैं हूं, मेरे को बोल दिया, मेरे ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। आप क्या हैं, क्या प्रभु से बड़े हैं, तो प्रभु में ही अहंकार नहीं है, आप में क्यों है, विनम्रता लाइए, आप खुश रहोगे, हंस दो बालक अरे छोड़ो, अरे बच्ची है, अरे क्या हुआ, अरे छोड़ो साहब क्या है, आप कहेंगे आप संत हैं। एक बार मैं एक लेक्चर दे रहा था, किसी ने कहा हमें संत बनाना चाहते हैं क्या, माय गॉड ये क्या कहा भैया आपने इतनी बड़ी भीड़ में, मैंने कहा हर्ज ही क्या है, इससे बड़ा कोई प्रमोशन है ही नहीं, मानव का सबसे बड़ा प्रमोशन तो ईश्वर बनना है ना, उसके पहले उसको संत बनना पड़ेगा हृदय से, दिगंबर और श्वेतांबर बनने की जरूरत नहीं है, उनकी भावनाएं लाओ अपने जीवन। महावीर कैसे चलते थे, बुद्ध कैसे बैठते थे, इस चीज का महत्व नहीं है, बुद्ध का हृदय, महावीर का हृदय, राम का हृदय, कृष्ण का हृदय, मोहम्मद का हृदय, ईसा मसीह का हृदय, नानक का हृदय, आहा, नानक तो एक इतना प्यारा इंसान था कि मतलब हम जानते नहीं लोगों के बारे में ज्यादा, आई टेल यू, आंसू आ जाए नानक और मीरा के बारे में पढ़ते हुए, तो उन जैसे बनिए। Time has come for us to realize that happiness is our right and happiness is our duty. So therefore you are right, constant नहीं रह सकते, पर try तो कर सकते हैं, try कर सकते हैं, try नहीं करते हैं हम लोग, नहीं, हर आदमी हमको खुशी रहता है, चिंता तो होगी, परेशानी तो होगी, लोग मर रहे हैं, कैसे सुखी रह सकते, मैं कब कहता हूँ कि लोग मर रहे हैं दुखी ना हो, उनकी प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रभु उसके परिवार को ठीक रखना, प्रभु मुझे भी ध्यान रखना, मुझ पर भी कृपा करना, मेरे बच्चों पर कृपा करना, अपने मृत्यु का इतना भय नहीं लगता, अपनों की मृत्यु का भय लगता है, अतः प्रार्थना उनके भी पहले करो,
और अपने क्या होते हैं, पराये क्या होते हैं, सारी दुनिया में विस्तार करो ना सब लोग। सबसे छोटा आदमी केवल अपने बारे में सोचता है, और बड़ा आदमी परिवार के बारे में, और बड़ी ज्वाइंट फैमिली के बारे में, और बड़ी कम्युनिटी का। पर महान व्यक्ति सोचता है पूरे विश्व के बारे में। वो राम बन जाता है, हनुमान बन जाता है, महावीर बन जाता है, बुद्ध बन जाता है। So it is possible to have constant happiness. इसको अंग्रेजी में दो शब्द हैं, कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअल। कंटिन्यूअस होता है अनइंटरप्टेड, कंटिन्यूअल क्या होता है कि आया, रुक गया, फिर आ गया। तो कंटिन्यूअल हैप्पीनेस है। थैंक यू। मैंने इन दिनों में क्या हुआ, अब देखिए बताऊं आपको, कोविड के दौरान मैंने कहा मैं क्या करूं, तो मैंने वीडियो बनाने शुरू किए। मैंने 76 78 बना लिए वीडियो। मोस्ट ऑफ देम आर इंस्पिरेशनल। विवेकानंद पर भी हैं, तो लिंकन पर भी है, तो अब्दुल कलाम पर भी है, सब पर है, और मैंने यंग पीपल के। तो मुझे पता ही नहीं था कि वीडियो इतनी वैल्यूएबल होते हैं। एक मेरा वीडियो है, कभी हार मत मानना, मैं कल देख रहा 4 लाख पे आ गया है व्यूज पर। गांधी जी वाला ज्यादा नहीं चल पाया, गांधी का चलेगा बाद में। लाल बहादुर शास्त्री का पिछले हफ्ते ही बनाया था, 42,000 पे आ गया। कई 1.5 2 लाख बन गए। तो मुझे लगता है कि ये माई मीनिंग, नो मनी इन्वॉल्व, मैं फ्री करता हूँ। तो मतलब ये है कि आई फील हैप्पी दैट आई एम सर्विंग। तो आप भी कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर करो अपनी इनकम का। इन दिनों में मेरा एक निवेदन है, 2% पीएम केयर्स फंड को दीजिए। आप, भगवान आप पर कृपा करेगा। पीएम केयर्स फंड में, मोदी जी वाले में, एक कौड़ी की भी अदला बंदी नहीं होती। इतनी ऑडिट जबरदस्त है। इलेक्ट्रॉनिकली भेज दीजिए पैसा, चलो 101 रुपए भेजिए, 1011 भेजिए, 2001 भेजिए, 11,000 भेजिए। अनिल साबू साहब तो भेजते ही करते ही रहते हैं। सबको करना चाहिए। हाँ नीरज जी। So, I have a question, Professor Sir. Professor Arora, it was very very engaging session. Number of questions, if you start looking at it, your narration, they will come. I think we will have thousands of questions. But one point which you सर थोड़ा सा माइक थोड़ा सा माइक जो है थोड़ा दूर कर लें अपने आप को। हाँ अभी ठीक है? बोलिए। Okay. So one question which comes to my mind कि आपने बोला कि how can you maintain, how should you should always have baby's instinct alive in you. फिर से बोले जरा, साफ नहीं आई, बिल्कुल टूटे टूटे शब्द आए हैं। फिर से बोलिए, धीरे धीरे बोले। हाँ Hello, am I हाँ audible? हाँ बोलिएगा प्लीज। Baby's instinct को कैसे alive रखना है? Because baby's instinct is one instinct which is a childlike instinct which you said, because that has the largest bandwidth of ignoring, or they are the most flexible instincts to ignore, माफ करने की शक्ति सबसे ज्यादा है उसपे। So baby's instinct जो आपने बोला, childlike instinct हमेशा alive रखें, what are the various tools to keep that alive? एक बात बताऊं आपको कि आपने इतना अच्छा सवाल पूछा है, इसके लिए मैं आपका आभार के प्रति व्यक्त करता हूँ। हाउ टू डेवलप, हाउ टू बिकम चाइल्ड लाइक। आइए आपको मैं बताता हूँ कि इसका मेन अर्थ क्या है। एक बहुत बड़ा मूर्तिकार था, स्कल्प्टर। वो ग्रेनाइट के हाथियों की मूर्ति बनाता था, ग्रेनाइट के बड़े बड़े हाथी। उसका नाम पूरे देश में था। राजा आया, राजा ने कहा कि मैं आपसे पूछना चाहता हूं कितने सुंदर आप ग्रेनाइट के हाथी कैसे बनाते हैं। मूर्तिकार ने कहा ये मैं बनाता ही नहीं। उससे क्या कह रहे हो, इतनी दूर से आया हूं आपसे पूछने के लिए कि हाथी आप कैसे बनाते हैं इतने सुंदर, और आप कह रहे हैं मैं बनाता ही नहीं। कि राजन सच यही है, मैं नहीं बनाता। राजा ने सोचा कि कोई ना कोई मेरे प्रश्न पूछने में कोई ढंग बदलना है। उससे अच्छा ये बताइए बनते कैसे हैं। तो फिर ये बता सकता हूं। मेरे सेवक समुद्र के किनारे ग्रेनाइट की चट्टानों से बड़ी बड़ी शिला तोड़कर ले आते हैं मेरी प्रयोगशाला में। जब बड़ी चट्टान आ जाती है, मैं उसकी ओर टकटकी लगाकर देखने लगता हूं।
1 घंटा भी नहीं, 1 दिन नहीं, कई बार 2-2, 3-3 दिन तक लगातार देखता रहता, 4 दिन भी गुजरता है। फिर मुझे उस चट्टान में हाथी दिखाई देने लगता है। मैंने छेनी और हथौड़ी उठाता हूँ और हाथी जो मुझे दिखाई दे रहा है, बाकी बचा हुआ जो पत्थर है हाथी के अलावा उसको तोड़कर फेंक देता हूँ। हाथी पहले से ही बना हुआ है। हम भी सुंदर बने हुए हैं, सिर्फ हमारे जो छोटे छोटे दोष हैं उनको छेनी और हथौड़ी विचारों से समाप्त कर, हम चाइल्ड लाइक बने रहे। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, क्षोभ, अहंकार, अवसाद, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, क्रोध जो भी हैं, ये इन पर विजय प्राप्त कर। तो इनसे लड़ो मत, इनके विलोम यानी just opposites of these various features, try to develop them. Instead of saying I don't want to be sad, say I want to be happy. Instead of saying oh I don't want to be selfish, just try to be helpful. तो जो चाइल्ड है ना, आपने बड़ी सुंदर बात कही, चिल्ड्रन आर वेरी फॉरगिविंग, गिव एंड फॉरगिव। और मतलब ये है कि सहज बनिए, सरल बनिए। सदगुरु है, श्री श्री रविशंकर हैं, ओशो हैं, इनकी मैंने जीवनी को देखा है, कितने सहज थे। और महावीर और बुद्ध बिल्कुल बच्चों जैसे थे। किसी ने थूका उनके चेहरे पर, साफ कर लिया, कहा कुछ और कहना है क्या? उसने कहा, आनंद ने, प्रिय शिष्य ने, कि क्या कह रहे हैं आप? इसने आपके चेहरे पर थूक दिया और आप कह रहे हैं कि कुछ और कहना है क्या? और उसे कहने का ढंग है, मुझसे रुष्ट है। चला गया वो आदमी। दूसरे दिन आके पैर पड़ गया, कल आपने क्रोध ही नहीं किया मुझ पर। उसने कहा कि मैं तुमसे पूछकर क्रोध करूंगा, 15 साल पहले आते तो शायद करता। कल तुमने मुझे थूक दिया मेरे चेहरे पर, मुझे दुख नहीं हुआ, आज तुम मेरा पैर पकड़े तो भी सुख नहीं हुआ। आनंदित रहो। ऐसा भाव जैसा हिंदुस्तान में ये है ना, वैसे और दुनिया में किसी देश में इतनी विविधता नहीं है, इतनी प्रांजलता नहीं है, इतनी उदात्तता नहीं है, इतनी दिव्यता नहीं है, अलग अलग विविधता नहीं है जितना भारत में है। किसी को भी अपना लीजिए, चाहे साईं बाबा को अपना लें, चाहे रामकृष्ण परमहंस को ले लें, चाहे किसी को भी ले लें, या महावीर को ले लें। हमें उनके जीवन में क्या चीज सबसे बड़ी चीज है? सहजता है, चाइल्ड लाइक है वो। अतः आपने जो सवाल पूछा उससे मुझे लगता है कि यू आर ऑलरेडी वेरी ग्रेट स्कॉलर and you have the answer to your question, but I am grateful to you that you really make me feel कि चाइल्ड लाइक बनने में क्या क्वालिटीज डेवलप होंगी। I'll start thinking about it. मैं इसको जवाब पूरा नहीं दे रहा क्योंकि बड़ा अच्छा प्रश्न है ये, मैं नोट कर लेता हूँ कि इसका जवाब मुझे ढूंढना है। चाइल्ड लाइक किससे कहते हैं? क्योंकि हम तो जितना से कह सकते हैं, हंसता है, हंसाता है, माफ कर देता है, बुरा नहीं मानता है, मस्ती करता है, खेलता है, तो इसके अलावा भी तो कुछ होना चाहिए ना। तो आई थैंक यू। ऐसा मजा इसीलिए आता है ऐसे प्रोग्राम्स में, दैट यू लर्न अ ग्रेट डील। Yes, Sir, Sunil ji. Acha, Pandit. sir, one of the scholars, I don't remember the name. He had said that only 2 type of people are happy in this world. One is a child, and the other person is a mad. अदर पर्सन इज मैड। जो चाइल्ड की बात, मैड की बात बताऊं, देखिए मीरा अपने आप को बावरी कहती थी, और शेख सादी अपने आप को पागल कहते। पागल वो होता है जो कि आसपास के पर्यावरण को भूल जाता है, खो जाता है। परमहंस मैड थे एक तरह से, तो लोग समझते पैड है। हालत ये हो गई थी, एक शादी में गए, किसी ने किसी को बुलाया, गोविंद। गोविंद शब्द आते ही वो तो समाधि में लीन। बगलों को देखा, समाधि में लीन। मैड थे ना, दुनिया उनको मैड कहती थी। आप देखिए कि जब वो काली माता की पूजा करते थे तो लड्डू खिलाते थे, लड्डू पहले खुद खा लेते थे आधा, फिर काली माँ। खाने लायक भी है कि नहीं, लोग बहुत कहते थे। तो रानी जी जिनका मंदिर था, उनको शिकायत की लोगों ने, तो ये अपवित्र करता है। रानी जी ने देखा, उसने कहा ये पागलपन नहीं है, ये प्रेम है। मैं तो तुम्हारे प्रेम में पागल हो गया। पागल हो गया ना, मैं तो काम करते करते पागल हो गया। पागल हो गए ना, ये देशभक्ति में पागल हो गया भगत सिंह। पागल हो गए ना। तो वैसा पागलपन तो एक सात्विक पागलपन है, बीमारी नहीं है, दिव्यता है।
सर वो मारवाड़ी में एक कहावत है कि अगर जी को सुख चाहे तो बावड़ो बनकर है, अगर खुश रहना चाहते हो तो पागल बन के रहो। तो सबसे ब्यूटीफुल, वेल सेड। बाकी बड़ा अच्छा पॉइंट है ये, आई नेवर थॉट अबाउट इट, पागल का। आई थिंक आई थिंक अबाउट इट, बड़ा अच्छा लगता है। अभी रिसर्च करेंगे इस पर के पागल के क्या गुण होते हैं। सुनील जी, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, सो प्लीज आप समाप्त करें। Request you to deliver vote of thanks, please. जी, sir. Yeah. अरोड़ा साहब नमस्कार। मैं आज इतना अभिभूत हो गया हूँ, मेरे बीच में रोए खड़े हो गए थे आपकी बात सुनते सुनते। जिस तरह से आपने कुछ चीजों की तरफ हम लोगों का ध्यान दिलाया, वो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें मालूम है, लेकिन आजकल की दौड़ भाग में उनको भूल जाते हैं। अच्छा, सुनिए, एक मिनट सुनिए, आपको खुशी बताऊं, ये मेरी किताब है खुशी की कला, है, देख रहे हैं आप, खुशी कला। ये सेवा भाव से लिखी है, इसमें कोई रॉयल्टी मैं नहीं लेता। तो ये, और एक अंग्रेजी में गिफ्ट ऑफ हैप्पीनेस। अनिल साबू जी आपको ये किताब इंग्लिश या हिंदी में जैसा टेस्ट होगा इस गिफ्ट भेजने वाले हैं। कल वो कह रहे थे, कहते ये सेवा मैं क्यों नहीं करूं, एसोसिएशन की, मैंने कहा एसोसिएशन की तरफ से करी, कहते बिल्कुल एसोसिएशन की तरफ से करूं। तो काफी चीजें जो मैंने बोली है ना इस किताब से भी हैं, और मैं खुद इसको पढ़ता हूँ कई बार। मेरे हैप्पीनेस पे करीब 7 वीडियोस भी हैं। और मैं आपको सच कहता हूँ कि अभिभूत होने की बात यह है कि मैं वो बोला था सर जो आपके अंदर पहले से ही है, नहीं तो सुनते ही नहीं। आई वॉज ओनली ट्राइंग टू रिपीट वॉट यू ऑलरेडी पोजेस इनसाइड। आप बोलते जाइए आगे। तो अरोड़ा साहब, मैं दूसरी चीज जिसकी वजह से मुझे बहुत बहुत प्रसन्नता है आज, वो ये है कि मैं आपको देख पा रहा हूं और आपसे बात कर पा रहा हूं करीब करीब 23 साल के बाद। कितने साल के मैं बाद? आपको 23 इयर्स। ओ माय गॉड। मैं आपको याद दिलाऊं, आप एक प्रोग्राम करते थे क्रोध के ऊपर, एंगर के ऊपर, और ये प्रोग्राम मैंने आपके साथ तब करा है जब आप ट्रांसपेरेंसीज यूज करते थे, और ट्रांसपेरेंसीज आपको बहुत प्रिय थी। हाँ, मैं भी अनीता जी ने पूछा कि आप पावर पॉइंट दे रहे हैं, मेरे पास सब चीजों के पावर पॉइंट हैं, पर सर मैंने देखा कि पावर पॉइंट से क्या होता है कि इमोशन नहीं आ पाता, लोग उसको पढ़ते रहते हैं और देखते, मैंने बंद कर दिया सब। दूसरा क्या हुआ, मैंने सब मेरी जो भाषण कला कहते हैं ना टीचर की होती है, वो खत्म हो गई थी। एंड देयर आर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। डोंट लेट हैप्पीनेस, आगे से पढ़ रहे हैं, वो भी पढ़ रहे हैं, तस्वीरें आ रही हैं, विदेशियों की तस्वीरें। तो अनिता ने मुझसे पूछा, आप बिना उसके बोलेंगे? मैंने कहा पावर पॉइंट अरोड़ा जी एक बैरियर भी क्रिएट करता है वक्ता और श्रोता के बीच में। वो फैसिलिटेशन का टूल है, लेकिन कहीं पर एक बैरियर भी क्रिएट करता है। क्योंकि अमेरिकन माइक्रोसॉफ्ट का है तो कंपार्टमेंट्स में ज्यादा है, इस पे चर्चा फिर कभी। लेकिन आज की बात पर, जो पहले तो मैं 23 साल पीछे चला गया, वो आपने जो तीलियां दी थी ना माचिस की, हाँ, माचिस की तीली आपने दी थी 23 साल पहले, वो अब तो मेरे पास नहीं है, लेकिन तीलियां काम बहुत आई थी। और मुझे एक चीज और याद है प्रोफेसर साहब, कि आपकी एनर्जी का लेवल उस समय में और अभी में, और आपके चेहरे की जो रौनक है उसमें बिल्कुल कोई फर्क नहीं आया है। I agree with you, सुनील जी, because मैं भी 5 बिल्कुल कोई फर्क नहीं आया है। और जिस वक्त मैंने अपना ये वीडियो ऑन किया है, मैंने आपको देखा है, असीम प्रसन्नता हुई, क्योंकि 23 साल के बाद मैं आपसे रूबरू हो रहा था और आपको सुन रहा था। ये बिल्कुल मन से कह रहा हूँ, दिल से कह रहा हूँ। और जो चीजें आपने आज बताई, ये हम सभी लोगों को मालूम है, लेकिन हम लोग सुनना बंद कर देते हैं। जैसे आप हमको एक तो इतिहास में ले गए, पहले शुरू में आपने इतिहास की बात करी, आपने किताबों की बात करी। किताबें लोगों ने पढ़ना बंद कर दिया है आज की तारीख में। आज की जनरेशन किताब नहीं पढ़ती, और ये बहुत
कल अनिल साबू जी ने पता क्या कहा? अनिल साबू जी ने कहा, सुनिए, कि सबसे अच्छी गिफ्ट बुक होती है। हाँ बिल्कुल कितना अच्छा वाक्य है ये। और मैं उम्मीद करता हूँ आपके कहने से अगर यहाँ पर मौजूद 4 लोग भी किताबें पढ़ना शुरू कर दें और उन लोगों को पढ़ना शुरू कर दें जो जो हमारे यहाँ इतने महान लोग हुए हैं, इतनी सोच उनके अंदर है और इतना ज्ञान और इतनी सोच उन्होंने उन किताबों में डिस्टिल करके रखी है, अगर उसका थोड़ा सा भी फायदा आज के आपके, देखिए आपकी बात यहाँ लोग मानेंगे क्योंकि आपका इतना विस्तृत अनुभव है और वो किसी को बताने से नहीं होता कि आपका 40 साल का अनुभव है, 60 साल का अनुभव है, वो दिखता है, वो आपकी वाणी में है, वो आपके ओज में है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं वापस वही 23 साल पीछे जाता हूं आपके साथ। आपने दोस्तों की बात करी, आपने धर्म की बात करी, आपने प्रसन्नता की बात करी, जॉय की बात करी, ये याद दिलाया कि एक ब्रेथ है, सिर्फ एक ब्रेथ का फासला है जो मैं अभी इस वक्त बोल रहा हूं और जो बोलना बंद कर, ये सोचता ही नहीं है। आपने लाइफ और डेथ की बात करी, कोई नहीं सोचता। अगर आज की आपके इसकी सेशन के बाद 4 लोग भी सोच लेंगे तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। पेन और प्लेजर की बात करी आपने प्रोफेसर साहब, फीलिंग्स और थॉट्स के बारे में बात करी, गोस्वामी तुलसीदास से लेकर के एमर्सन, अमेरिकन फिलोसफर्स, यूरोपियन फिलोसफर्स की बात करी। मुझे बड़ा अच्छा लगा आपने अमृतलाल नागर की बात करी, मेरे शहर के हैं। आप लखनऊ के हैं? जी हाँ, लखनऊ के। मेरा बड़ा सौभाग्य है कि अमृतलाल नागर के साथ चौक के गोल दरवाजे में बैठ करके राजा के यहाँ मैंने ठंडाई भी पी। अरे राम रे, आपसे हाथ मिला। पुरानी बात कर रहा हूँ। वो उस वक्त लखनऊ का क्या लिटरेचर बात का है, गढ़ हुआ करता था। क्या बात है सर, क्या बात। वहां कर मैं उनकी वाणी सुनी हुई है। अच्छा सुनिए, मैं अपने आप अमृतलाल नागर की पता है आपको छोटी सी महाभारत भी है, छोटी महाभारत है उनकी, अमृतलाल नागर, जरूर पढ़िएगा। बिल्कुल बहुत अच्छी है, छोटी सी है, आप उसको 3 दिनों में पढ़ लेंगे। जी। बचपन की बात करी आपने, बचपन के को आपने डिस्क्राइब किया अरोड़ा साहब, और अपने अंदर बचपन खो ना जाए इसके लिए प्रेरित किया। परमात्मा और प्रेम की बात करी, ईश्वर और माँ बाप की बात करी। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो इसमें कोई किसी को पता नहीं है कि किसी को पता नहीं है। ईश्वर के बारे में सब लोग जानते हैं, बचपन से हमें संस्कार मिले, लेकिन कहीं पर हम भटक जाते हैं, उससे बात करना बंद कर देते हैं। आपने पारो के मठ की बात करी, आप हमको ले गए पता नहीं इतनी दूर, इतनी पहाड़ों के बीच, थिम्पू के पास, भक्ति और गुण, खैर की बात करी, आनंद की बात करी, मोक्ष की बात करी। मतलब इतने 1 घंटे के अंदर प्रोफेसर साहब आपने इतना कुछ हम लोगों को दे दिया है, आज इतना कुछ दे दिया है कि मैं एक आपसे परमिशन लेना चाहता हूँ, इसकी जो हम लोगों ने इसको रिकॉर्ड किया है, तो अगर आप इजाजत देंगे तो हम ये अपने और लोगों के साथ शेयर भी करेंगे। 1000 के साथ करिए ना सर, क्या बात कर रहे हैं आप भी। थैंक यू। एक लिंक बना करके एक उसके ऊपर डाल करके क्लाउड पे, मैंने आपको कह दिया आप करिए, फिर मेरी आपसे सबसे है कि मेरी वीडियो भी देखिएगा। बिल्कुल रमेश के अरोड़ा के नाम से, मोटिवेशनल गुरुजी नाम है रमेश के अरोड़ा, उसको आप सब्सक्राइब करिए क्योंकि वो सारे इंस्पिरेशनल है। अच्छा, मुझे लोग कहते हैं कि आपके हर वीडियो में भगवान कैसे आ जाता है, इनका भगवान आ जाता है या भगवान के बिना कौन सा वीडियो पूरा होता है? भगवान के बिना तो कोई यज्ञ नहीं पूरा हो सकता। कुछ नहीं, लोग कहते हैं आप हर जगह भगवान होते हैं इसलिए हर वीडियो में आ जाते हैं। तो मैं अरोड़ा साहब, आप इसी तरह आगे भी आने वाले 100 साल तक हम लोगों को इसी तरह से बताते रहें। हाँ, मैं मन से कह रहा हूँ। आई एम वेरी हैप्पी ऑलरेडी। बहुत कर लिया था, बहुत पा लिया, बहुत पा लिया। और अब ये थोड़ा कोरोना हट जाए, थोड़ा ट्रैवल की ईज हो जाए, तो हम आपको यहाँ दिल्ली में भी अपने और साथियों से मिलाने के लिए बॉम्बे में
सब जगह आपको आमंत्रित करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू बहुत सर। धन्यवाद। अच्छा भाई साहब, मुझे अनीता जी, राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर प्रोफेसर साहब मुझे साहब का पूरा नाम और फोन नंबर भेज दीजिएगा प्लीज। मेरा अच्छा आप ऐसा करें ना, मैं आपको अपना नंबर दे रहा हूँ फोन का, आप उस पे मुझे आपके डिटेल्स भेज दीजिएगा जो जो चाहे। अनीता जी, मैं आपको अपनी वीडियो भेजूंगा, आगे आप ट्रांसफर कर दीजिएगा। 9829010011। हाँ सर, आपका नंबर है। नंबर है ना आपके पास मेरा? बस ठीक। आपके पास, आपको 2 बार कॉल किया है सर मैंने। हाँ मुझे, अनीता जी आपने तो किया ही है, बाकी इनके पास नहीं है ना, इनको दे दीजिएगा, भेज दीजिएगा। मैं ले लूंगा, अनीता से मिल लूंगा। और आपका भी मुझे चाहिए। अनीता बेटे, मुझे इनका जरूर भेजना, ठीक है सर। once again I want to have a round of applause for Professor Arora. थैंक यू ग्रेटफुल। Thank you. सारी प्रशंसा उस प्रभु की है जिसने हमारा निर्माण किया, सब प्रशंसा अपनी क्या है, सब ट्रांसफर्ड, सब उसको ही है। Okay. Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू अनिल जी, थैंक यू अनीता जी। और सर आपसे तो बात करके अच्छा लग गया। अमृतलाल नागर साहब के मित्र रहे हैं आप? नहीं, मैं मित्र नहीं रहा हूँ, मैं वो मुझसे बहुत बड़े हैं, बहुत उम्र का फर्क है। वो इत्तेफाक है कि जहाँ वो बैठते थे वहां पर हमारे घर के लोगों का आना जाना था, और मैं बहुत छोटा था उस वक्त। वो तो शिखर पे थे उस वक्त अपने। देखिए उनकी किताब का नाम है ना बूंद और समुद्र। मैं समझता हूँ जीवन में जी, बढ़िया साहब, हम ही बूंद हैं और हम ही समुद्र बन जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू, नमस्कार। Thank you. मीटिंग इज ओवर। Hello. Anita. Okay. Thank you. Well ओके, organized. बाय 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 बाय। Bye. Thank you. अनीता जी, इसका Thank आज you, ये sir. वीडियो Thank प्लीज you everyone. Bye bye. अच्छा अनीता Thank बेटे, you मुझे so भी much, वीडियो sir. भेज देना, मुझे भी की वीडियो एक है, मुझे भी इसका एक Sure, वीडियो sir. भेज। I think Hello? he आपके पास भी। left. हाँ, भेज जी, देंगे सर। सर, भेज देंगे, ओके ओके भेज देंगे सर। Thank you so much, sir. पार्टिसिपेंट्स को वीडियो भेजिएगा प्लीज। Thank you so much. Thank you everyone. Thank you. The privilege to have you all listen. थैंक यू। क्यों राव साहब। Thank you very much. Lecture. Very good. Thank you, sir. Thank you everyone.